Hello friends, welcome back to Ayesharu Time. We were doing physics and in that we were doing motion in the previous videos, and we had completed till the equations, the graphs, acceleration, g, everything we have completed. We had completed the proofs of the equations. So if you are a person who gets stuck in any of the concepts of motion, I would recommend you to go and watch those videos. I have given the link of those videos in the description box. You can check those videos out and then you can come on this third part, because over in this video we will be doing only the questions. So first of all you need to know what is there, what are the formula, how to approach. Only then can you solve the questions. So before watching this video, I would recommend to watch the previous two videos of motion chapter, and both of them I have given the link in the description box. So after you watch those two videos, come back to this one, and over here we'll be doing only the questions today, which will be of the NACJS level, and the questions will be from the motion chapter of the kinematics chapter. Yes, we are not going to do the differentiation and integration part because that is of the class 11th calculus kinematics. I am not going to approach that. Currently we are going to do only the kinematics limited to class 9th, which will be asked in the NSCGS. So let's start with the questions. Okay, let's start with them. So let's start with the questions. And first of all, see, in NSCJS or INJS or any other Olympiad which you take, one of the most important things is to analyze the situation, to make a graphical figure of how it will proceed. So today we are going to do the questions. Now the first question is, let's say a car is there, a car travels half distance of its journey at 40 km/h, and the second half at 60 km/h. Okay, find the average velocity of the car. This is our question, the first one. Now how will you approach it? How will you know what to do in this question? Read it simply. A car travels half distance, first keyword. Second, the first half distance is being traveled at 40 km/h, and the second half is traveled at 60 km/h. तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही सारी की सारी बातें लिखी रहती है, बस तुम्हें वो फाइंड करनी रहती है कि कहाँ क्या. बहुत जगह क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, या पार्टिकल at rest travels at 6 km/h to 180 मीटर मार्क. अब आप सोचोगे ठीक है 6 km/h ठीक है, वेलोसिटी फाइंडर निकल गया, 180 मीटर ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कहाँ गया, एक्सेलरेशन कहाँ गया. अब बोला रहेगा क्वेश्चन में फाइंड द एक्सेलरेशन. तो मैंने जो क्वेश्चन क्या कहा, द बॉडी इज एट रेस्ट. अब वो रेस्ट का मतलब ही है कि इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही सारी की सारी यूजफुल बातें रहती हैं, बस वो फाइंड करनी रहती है. अब इसमें क्या लिखा, अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं. आप अपने से अगर ट्राई करना चाहें, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए. क्वेश्चन बहुत आसान है, हो जाना चाहिए. लेट्स से S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने और S2. अच्छा एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस अगर S है तो इसने हाफ डिस्टेंस बोले, तो क्या मैं S/2 लिख सकता हूँ S1 और S2 की जगह? यहाँ भी मैं S/2 लिख सकता हूँ. ठीक है, ये डिस्टेंस हुआ, राइट. अब
अब फर्स्ट पार्ट कितने पे था, 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। एवरेज स्पीड, बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं, क्यों गलत करते हैं? क्योंकि वो स्पीड का एवरेज कर लेते हैं। स्पीड का एवरेज नहीं करना है। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, total distance traveled over total time taken, ठीक है। ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। अब इसी के हिसाब से देख लेते हैं। अब पहले केस में टाइम क्या होगा, यहाँ तो हमें केवल डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है। अच्छा एक बात बताइए, डी इज जो स्पीड होता है, स्पीड इनटू टाइम क्या डिस्टेंस होता है? क्या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है? तो क्या टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ होता है, तो पहले बहुत बचपन में सीख लिया था। तो क्या टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है? बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से बेसिकली वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि जो T1 होगा हमारा, T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फर्स्ट S/2 ओवर टाइम, सॉरी ओवर स्पीड। तो स्पीड क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40 हो गया। यानी कि पहला जो टाइम है वो S/80 है। अब उसी तरीके से T2 भी हो जाएगा S/2 इंटू 60। अब ये है S/120। अब हमें पता है टोटल डिस्टेंस क्या है, पूरा S है, राइट। सो V एवरेज इज इक्वल्स टू S ओवर टोटल टाइम टेकन, यानी कि T1 प्लस T2, यानी कि S/80 इंटू S/120, राइट। अब चलिए देखते हैं, अगर मैं S में से नीचे से अगर मैं S कॉमन ले लूँ बाहर, ये प्लस है, सॉरी दोनों टाइम का एडिशन, अगर मैं दोनों में से S बाहर ले लूँ तो 1/80, सॉरी मैं दोनों में से S/40 बाहर लेता हूँ मान लीजिए, तो 1/2 प्लस 1/3 बचेगा, क्योंकि ये S/40 इंटू 2, S/40 इंटू 2, S/80, S/40 इंटू 3, S/120 आ गया। अब S से S तो कट जाएगा, 40 जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 40 ओवर 1/2 प्लस 1/3 हो गया, ओवर 6 में फिर 3 प्लस 2 यानी 5, यानी कि ये हो गया 40 इंटू 6 ओवर 5 से कटा 8, तो इट इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला, ये हमारा आंसर निकला 48 किलोमीटर पर आवर। This is the average speed for this question, what we had to find. अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, क्या है वो इम्पोर्टेंट बात अभी बताता हूँ। सी बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ना डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी होते हैं, मतलब होते तो हैं कॉन्सेप्चुअल, बट उनका लोग फार्मूला बना के तुरंत वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। कैसे वो बताता हूँ। सी इस क्वेश्चन को करने का भी एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, लेट्स सी इट। अब हम केवल वेरिएबल से खेलेंगे। किस चीज से खेलेंगे अब हम? केवल वेरिएबल से। कैसे?
हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। अब हमें ये भी पता है कि अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है तो ये s/2 है और लेट इट बी u1 इट बी u2, राइट। ये इसको v1 मान लेते हैं, वेलोसिटी 1 एंड इट इज वेलोसिटी 2, ये भी s/2 है, राइट। अब टोटल डिस्टेंस तो हो गया s, टोटल टाइम क्या हुआ, यहाँ पे से हम टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि ये है डिस्टेंस और ये है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, यानी कि t1 इज इक्वल्स टू s/2v1 और t2 इज इक्वल्स टू s/2v2, बिकॉज s/2 इंटू v2 s/2 इंटू v1। अब टोटल टाइम का समेशन जो होगा वो s/2v1 प्लस s/2v2 होगा, राइट। अब उसी तरह जैसे मैंने पहले किया था, अब ये ओवर s है पूरा है, और साथ में s/2 अगर बाहर ले लूँ तो 1/v1 प्लस 1/v2 बचा, s से s कैंसिल आउट, 2 ऊपर चला गया विच इज इक्वल टू 2 ओवर। अब नीचे में अगर v1 और v2 का देखा जाए तो एलसीएम ये आ जाएगा v2 प्लस v1, तो फिर से ये ऊपर जाएगा तो इट इज़ 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल। इस केस में डिस्टेंस दोनों ही इक्वल है, ये भी s/2 है, ये भी s/2 है। अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप एक नोट लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला is called the distance average, the distance average, and can be used only when the given distances are equal. ये जो फॉर्मूला है इसको डिस्टेंस एवरेज भी कहते हैं, डिस्टेंस एवरेज। ऐसे तो ये डिस्टेंस का एवरेज नहीं है, बट बिकॉज डिस्टेंस सेम रहने पर ही हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसीलिए याद रखने के लिए इसका नाम डिस्टेंस से ही रिलेटेड डाल दिया, तो डिस्टेंस एवरेज ही फॉर्मूला है। डिस्टेंस मतलब इस नाम को आप समझने की कोशिश अगर करेंगे, डिस्टेंस एवरेज, डिस्टेंस क्यों रखा गया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एवरेज क्यों रखा गया, क्योंकि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। देन दिस द फॉर्मूला। अब सेम इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला बेस पे करते हैं, राइट। लेट्स ट्राई इट। 2 इंटू 40 इंटू 60, राइट, ओवर 40 प्लस 60 100, ये होना चाहिए एवरेज। उसके बाद फिर 24 इंटू 2 48, सेम आंसर आया जैसे पहले आ रहा था, 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप या तो लेंदी प्रोसेस वाला मेथड करो, और नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर सेम ही निकलेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको टाइम बहुत कम लगेगा। सी विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस फॉर्मूला इसीलिए बने। अब ये हमने देखा डिस्टेंस एवरेज। अब क्या टाइम अगर इक्वल हो तो भी हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कैसे? गुड क्वेश्चन, कैसे निकाल सकते हैं? अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट कर देता हूँ। क्या एडिट कर दूँ? कवर्स half of its journey at its night, covers half duration ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A car travels half duration of its journey at 40 km per hour and the second half at 60 km per hour. Find the average velocity of the car. अब हमारे पास दिया क्या हुआ है?
बोला गया है कि अगर कार में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कुछ आया, कुछ भी, अगर यहाँ से यहाँ तक लेट्स से टी टाइम लगा है, राइट, तो यहाँ से यहाँ तक में भी टी टाइम लगा होगा, राइट, क्योंकि हाफ ड्यूरेशन है। अगर टोटल का टी है तो लेट्स से ये t/2 होगा। टोटल अगर t सेकेंड्स में कार ने ट्रैवल किया तो t/2 सेकेंड्स के लिए उसने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ट्रैवल किया, और अगले t/2 सेकेंड्स में उसने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया, राइट। नाउ अब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या है, तो S1 is equals to V1 into V2 T1 sorry, because displacement in the first case is equals to velocity in the first case into time of the first case, which is equals to 40t/2, right। उसी तरीके से S2 is equals to 60t/2। क्या मैं इसे 20t लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे 30t लिख सकता हूँ? ना, ये क्या है, ये रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं, सम ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज टोटल डिस्टेंस होता है ना, दोनों का सम ओवर टोटल का टाइम। 50 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। अब इसके लिए भी लोगों ने फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया, देखिए, अगर मैं इसे अब V1 मानता हूँ, अगर मैं इसे अब V2 मानने लगा, ठीक है, तो अब लोग ने क्या फॉर्मूला बना दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ का डिस्टेंस होगा V1 t/2 प्लस यहाँ का डिस्टेंस वो होगा V2 t/2 ओवर t, राइट। अगर मैं t से t कैंसिल कर दूँ तो क्या ये V1/2 प्लस V2/2 है, यानी कि ओवर 2 V1 प्लस V2 है। तो बस इसी फॉर्मूले से, अब इस फॉर्मूले से भी ट्राई करते हैं। कैसे, 40 प्लस 60 सॉरी प्लस 60 ओवर 2, 40 प्लस 60 100/2 विच इज इक्वल टू 50। सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। तो बस यही है खेल। तो ये फॉर्मूला है टाइम एवरेज का, इसका नाम है टाइम एवरेज। Time average. This formula can only be applied when the time of two given instances are equal. जब ड्यूरेशन इक्वल हो तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पर t/2 टाइम था, यहाँ भी t/2, तो दोनों ही केसेस में टाइम बराबर था, और तब हमें बोला कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने, तो हम ये फॉर्मूला लगा के कर देंगे, ये टाइम एवरेज है, ठीक है। तो अब तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हमने तो दो डिस्टेंस इक्वल जब हुआ तो हमने क्या फॉर्मूला देखा, पहले अब ये क्वेश्चन मिटा देते हैं। हमने देखा कि जब टू डिस्टेंसेस आर इक्वल देन एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड is equals to what, 2v1 v2 over v1 plus v2, right। अब when two times are equal then average velocity is equals to what, v1 plus v2 by 2। अब when three distances are equal, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये भी 10 किलोमीटर था, ये भी 10 किलोमीटर था, ये भी 10 किलोमीटर था, तो इस सब केस में when three distances are equal then average velocity is, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, 3v1 v2 v3 over v1 v2 plus v2 v3 plus v1 v3, 3v1 v2 v3 over v1 v2 plus v2 v3 plus v1 v3, ये फॉर्मूला होता है। अब when three
टाइम्स आर इक्वल, देन सिंपली टाइम वाला तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस पैटर्न समझिए। ये टाइम का आ गया, तो बस ये 4 मेन फॉर्मूला है, इसके अलावा ज़्यादा पूछा नहीं जाता। यही मैक्सिमम है, 3 डिस्टेंस मैक्स इक्वल देगा, नहीं तो किसी क्वेश्चंस में आपको कंबाइन दे देगा कि अ कार ट्रैवल्ड हाफ डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ was traveled in a time, let's say t, then that car traveled for t by 2 at 2 kilometer per hour and for the second t by 2 at 6 kilometer per hour। तो इस क्वेश्चन में बोला गया एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है डिस्टेंस एवरेज और टाइम एवरेज का। अब आप इस क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, तो द लास्ट का जितना टाइम है तो टी टाइम दिया हुआ है, तो यानी कि टी टाइम में वो टी बाई टू बोल रहे हैं, यानी कि टाइम इक्वल है, यानी कि पहली बात तो हम लगा देंगे टाइम एवरेज लगा के 2 + 6 8 बाई 2 4 आ जाएगा हमारा लास्ट का। अब इस क्वेश्चन में ये भी पहले से बोला गया था कि इनिशियल जो हाफ डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया, लास्ट का हमने निकाल लिया 4, तो अब दोनों ही जगह 4 किलोमीटर है, तो एवरेज भी तो 4 ही किलोमीटर होगा ना, तो बस आ गया आंसर 4 किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ की डिस्टेंस एवरेज और टाइम एवरेज इक्वल दिया है, मतलब दोनों ही इक्वेशंस, दोनों ही फॉर्मूले का यूज़ आ रहा है, डिस्टेंस एवरेज का भी टाइम एवरेज का भी, तो हम वो पहले फाइंड करते हैं जिससे कि हमारा दूसरा चीज़ फाइंड करने में इजी हो जाए। हमने क्यों पहले टाइम वाला फाइंड किया, हमने क्यों नहीं पहले डिस्टेंस ही डाल दिया, क्योंकि हमें दूसरे का स्पीड नहीं पता है, दूसरे हाफ का हमने स्पीड नहीं जाना, तो हमें उस हाफ का पहले स्पीड निकाला, फिर हमने डिस्टेंस एवरेज डाला। तो बेसिकली फिजिक्स में हर एक क्वेश्चंस में हमें यही करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दोज थिंग्स व्हिच विल हेल्प अस टू नो द अदर थिंग्स। पहले जो सामने मिला हुआ है, जो खाना परोसा हुआ है, उसको पहले हम खा लेते हैं, उसको पचा लेते हैं, उसके बाद फिर जितना जो एक्स्ट्रा हमारा दिमाग लगता है, जो दिमाग लगा के हम उसका रिजल्ट बनाते हैं, फिर उस रिजल्ट से हम फिर नया जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले जो सामने में क्वेश्चन में दिया रहता है, पहले हम उससे काम कर लेते हैं, उसका खेल खेला ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द फॉर्मूले एंड मैंने आपको कुछ बता भी दिया स्पेशल, जो कि आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी तो हमने क्वेश्चंस ही नहीं देखे, कितने होते हैं। एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान है। अगर मैं बोलूँ ना कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप भूल ही जाओ कि आप कोई भी ओलंपियाड कर पाओगे। रियली मैं मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी के आगे। अब चलिए एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने प्रोजेक्टाइल देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के पहले लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। ये कंडीशन है, अब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, अब क्वेश्चंस फिर हम बाद में करेंगे। A ball is dropped. This is a height h. ये तो बहुत आसान हो गया। Find the final velocity. जब बॉल यहाँ आएगा तो v is equals to what? तो बहुत आसान हो गया। अब हमें पता है कि g is in downward direction. Let's say downward to be positive, तो जो भी कुछ upward होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ कुछ upward है ही नहीं, सभी downward है, u भी downward है, v भी downward ही जाएगा, g भी downward ही है, तो हमें कोई माइनस का साइन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। अब हमें थर्ड इक्वेशन बस अप्लाई करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो थर्ड इक्वेशन विल गिव अस v² minus u² is equals to 2as। अब हमें s दिया हुआ है यानी h, हमें a पता है क्या है, वो ag है। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है, तो सिंपली v is equals to u² plus 2gh का रूट। अब हमें पता है कि u तो 0 है, यानी कि v is equals to √2gh। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, व्हेन द इनिशियल स्पीड इज 0। चलिए एक और फॉर्मूला हमने देख लिया।
अब आते हैं वापस से, ये तो बहुत आसान केस है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा हम दिमाग में जोर डाल के कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? और एनसीईआरटी से थोड़ा हट के चल रहे हैं। नाउ कम्स द मेन पार्ट, जब मज़ा आता है फिजिक्स में, मैथ्स में, जब नई नई चीज़ें, नई नई एक्सपेरिमेंट्स, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। लेट्स से ये एक बॉल है, इसे इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब बॉल क्योंकि एक हाइट h पे है, हाइट इज लेट्स से h, बॉल को अगर इधर फेंका गया तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो नीचे गिरेगा, तो कुछ ऐसा पाथ होगा बॉल का, राइट, पैराबोला टाइप, हाफ पैराबोला। अब इस केस में हमें पता है कि ये केवल इधर की तरफ फेंका गया। डाउनवर्ड क्या इसको कोई एक्सेलरेशन दिया, कोई स्पीड दिया क्या, कोई डाउनवर्ड? मतलब इस पोजीशन पे जब ये यहाँ पे था, जब ये फेंका गया इस पोजीशन पे, तो केवल उसको उधर की तरफ फेंका जा रहा है, डाउनवर्ड तो कोई उसको फेंक नहीं रहा, राइट। हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम इसको उधर फेंक रहे हैं। बिल्डिंग से हम किसी को ढकेल दिए, प्रैक्टिकली मैं ट्राई करना, किसी को ढकेल दिए, किसी चीज को ढकेल दिए, तो हम केवल उसको उधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, हम नीचे की तरफ तो उसको कोई स्पीड दे नहीं रहे। तो अगर नीचे की तरफ कोई स्पीड नहीं दे रहे हैं तो नीचे की तरफ का स्पीड उसका क्या होगा? 0। और इसको u1 u0 मान लेते हैं, इसको u1 मान लेते हैं। अब हमें ये भी पता है कि ये x एक्सिस कहलाते हैं, ये y एक्सिस कहलाते हैं, तो क्यों हम इसे u1 u0 माने, हम इसे uy और ux मानते हैं, चलेगा। अब ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? आपका आंसर होगा सर नीचे, नीचे ही ना एक्ट करती है जी। तो मतलब ये कि जी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करती है, राइट। यानी कि केवल जो नीचे वाला जो इसका स्पीड होगा, जो भी इसका नीचे y एक्सिस का जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी इसका y एक्सिस का कंपोनेंट होगा, इस एक्सिस में जो भी कंपोनेंट्स होंगे इसके, यानी कि जो इसका इस एक्सिस का स्पीड है, इस एक्सिस का हाइट है, वो सारी की सारी चीजें g के इन्फ्लुएंस में आएंगी। यानी कि अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब g इस पे एक्ट कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में, यानी कि भले ही यहां से यहां चला गया, लेकिन आखिरकार g तो हर एक इंस्टेंट पे नीचे ही एक्ट कर रहा है। यानी कि इस केस का फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u इज 0, a इज g यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी gt आ गया, ये gt है, v फाइनल, ये हम u y माने हैं ना, तो हम इसे फाइनल वेलोसिटी इन द y एक्सिस मानते हैं, ठीक है। अब क्या उस डायरेक्शन में, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इसको रोक रहा है क्या? क्या कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है क्या? क्या कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जी तो एक्ट कर ही रहा है, जी y एक्सिस पे एक्ट कर रहा है। G will always pull down, it will never ever reduce that direction speed। क्या G इधर की तरफ लगता है? नहीं ना। क्या G उधर की तरफ लगता है? नहीं ना। G हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो जो कुछ भी उसका नीचे का स्पीड होगा उस पे G लगेगा। तो इस डायरेक्शन में G उधर थोड़ी लग जाएगा, अगर ऐसे जा रहा है तो G इसको इधर थोड़ी ना रोकेगा, नहीं ना करेगा, G केवल नीचे लगेगा। तो x एक्सिस का तो कंपोनेंट खुद ब खुद एकदम फ्री, nobody is there to stop him। x एक्सिस का स्पीड इज ऑल फ्री, राइट। तो हर एक केस में ये ux ही रहेगा, क्योंकि इसे तो कोई रोक ही नहीं रहा। अब हमने जो भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, सेम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यहाँ की है, जो भी फाइनल है वो यहाँ ना।
ये बेसिक्स हो गए हमारे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, जैसे बोला जाए, अब पहली बात एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से यहाँ तक को जहाँ बॉल जहाँ से फेंका जाता है और जहाँ लैंड करता है उसको रेंज कहते हैं और इसको हाइट कहते हैं, यानी ये h है, ये r है। अब h इज इक्वल्स टू, अब ये इस पाथ की बात की जा रही है तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा, u इज 0 यानी कि हाफ इंटू g का वैल्यू 10 t स्क्वायर, राइट। यानी कि या इसको मैं न्यूमेरिकल्स में नहीं लेकर के सिंपल gt स्क्वायर लिख दूं, राइट। नाउ रेंज, अब टेल मी, अगर t टाइम के लिए ट्रैवल किया गया, अगर t टाइम के लिए ट्रैवल किया गया तो टाइम इज इक्वल्स टू 2h बाई g का रूट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी पूछ दिया जाता है इससे क्वेश्चन। टाइम, फाइंड द टाइम टेकन व्हेन इट विल फॉल, सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई g। अब इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या इस डायरेक्शन में जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट ux फॉर टाइम t लेट्स से, तो क्या जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो ux इंटू टी होगा, बिकॉज एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि r इज इक्वल्स टू ux यानी u इनिशियल t। अब t की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी u इनिशियल, यानी कि r जो रेंज है वो u इंटू टाइम है। अब टाइम जो भी हमारा आगे वो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी है, ये भी है, ये चार तो मेन फॉर्मूला है। अब ये हो गया। अब एक और मेन फॉर्मूला आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब टेल मी सी, ये हम समझ गए क्या होने वाला है। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा इसका? ये फाइनल इन y डायरेक्शन है, ये फाइनल इन x डायरेक्शन है, राइट। तो फाइनल क्या हो जाएगा इसका? अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस, यानी कि u इनिशियली डाल देता हूँ, आप कंफ्यूज कर जाओगे, u इनिशियल राइट प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि जब बॉल लैंड करेगा तो आखिर में उसका कुछ स्पीड होगा ना, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसका जो एक्चुअल स्पीड है वो तो दोनों का समेशन होगा पाइथागोरस यूज करके। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट यू आई स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये भी हो गया हमारे पास। अब नाउ टेल मी, क्या आपने कभी सच में बॉल फेंका है? अगर आप बॉल को फेंकोगे तो इट विल टेक सम टाइम टू गो बैक टू द ग्राउंड एंड देन इफ इट विल बाउंस अप, अगर वो फिर से बाउंस किया तो फिर वो उसी सेम हाइट तक नहीं आता जहाँ तक कि वो पहले से जा रहा है, राइट। वो सेम हाइट तक नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस केस में नहीं लगाते, पैराबोला के केस में होता है। इस केस का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो बहुत आसान है, क्या बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सुनने में बहुत बड़ा वर्ड लगता है, बेसिकली ये है वो चीज़ जिसमें कि हमें हर एक वैल्यू ही दी रहती है, कुछ भी फाइंड कर दो उसमें से, हर एक वैल्यू, जैसे 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 जैसे
मैं यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू आर ओवर यू इनिशियल लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अब मैं अगर इसी आर ओवर यू इनिशियल टाइम को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या एच इज इक्वल्स टू जी बाई टू इंटू आर स्क्वायर ओवर यू इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा क्या? बिकॉज टी का स्क्वायर है तो सब का स्क्वायर कर डाला। तो बस यही है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बेसिकली इसमें हर एक चीज़ है, आपको हाइट फाइंड करनी है हाइट फाइंड कर लो, रेंज फाइंड करनी है रेंज फाइंड कर लो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम कर सकते हैं। तो 2u² h इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया हमारा when body is projected from a height horizontally। बहुत बार बॉडी को ऐसे से ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कभी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो वो सब केसेस हम बाद में पढ़ेंगे जब हम 11th की काइनेटिक्स कर रहे होंगे। बहुत बार आता है आपको क्वेश्चन कि अगर बॉडी ऐसे फॉल कर रही है तो फाइंड द थीटा दैट इट मेक्स विद द ग्राउंड, राइट? तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। बेसिकली देखिए अगर यहाँ से यहाँ बॉडी फॉल कर रही है, बोला जाता है कि ये थीटा फाइंड करो। अगर बॉडी का ये पाथ है तो ग्राउंड पे फॉल की तो ये एंगल जो ग्राउंड से बना रही है वो थीटा फाइंड करो। तो बेसिकली थीटा हमें क्या पता रहता है? हमें ये पता रहता है कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, हमें ये पता रहता है कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, Vx और Vy। अब क्या हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके, अगर ये है और मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना दूँ तो अगर ये Vy है तो ये भी Vy होगा, पैरेलल है। अब ये Vx है तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि tan थीटा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस Vy ओवर Vx, यही हुआ। अब तो इस केस से थीटा इज tan इनवर्स ऑफ Vy बाई Vx, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिजिक्स में आपको बहुत काम आती हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट बातें, एक बॉल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो बॉल ऐसे जाएगी, राइट? अब लेट्स से कि उसका इनिशियल स्पीड हमने u रखा। अब अगर ये u है तो क्या ये u cos थीटा होगा? क्यों होगा पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद बता दूंगा। और अगर ये u cos थीटा है तो ये होगा u sin थीटा इस डायरेक्शन पर। क्यों? सी बेसिकली अगर ये थीटा है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ, राइट? एक ट्रायंगल है, ये थीटा है लेट्स अज्यूम, और ये हाइपोटेन्यूज पे u है। अब हमें निकालना क्या है कि थीटा के बेस पे क्या आएगा? हमें निकालना है बेस पे क्या आएगा। हमें दिया हुआ है u हाइपोटेन्यूज का, तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर डालूं तो u और u कट जाएगा, क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूज पे है, ये हाइपोटेन्यूज खुद है, यानी कि दोनों ही कट जाएंगे। u भी ये क्या है? हाइपोटेन्यूज का ही है, और ये भी हाइपोटेन्यूज। बेसिकली वेक्टर्स का लॉ यहाँ पे यूज होता है। वेक्टर मतलब कि वेक्टर्स में क्या होता है, एक लॉ कि जितना मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा एरो, छोटा वेलोसिटी तो छोटा सा एरो। तो हमें यहाँ पर अगर मान लीजिए इतना बड़ा एरो दिया, यानी कि ये इसका वेलोसिटी है डिनोट करने के लिए। तो बस अगर ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ है तो बेस का लेंथ क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज पे है u, तो उसका हाइपोटेन्यूज इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर करेंगे तो इन दोनों कट जाएगा, तो बेस बचेगा हमारे पास। तो अगर इस हाइपोटेन्यूज को मैं u लिख दूं और b बाई एच को मैं cos थीटा लिख दूं, तो क्या हमारा बेस पे वेलोसिटी निकल आएगा। तो बस हमें यही फाइंड करना है, तो u cos थीटा इज ऑन द बेस। उसी तरह हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर पे। अब इस साइड निकालो या इस साइड निकालो, कौन सा ईजी रहेगा? मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें फिर क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब फिर अगर ये 90 माइनस थीटा है और मैं यहाँ पे ये डाल दूँ, हमें 90 माइनस थीटा का बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें u दिया हुआ है। अब आप फिर बोलोगे सर 90 माइनस थीटा का कैसे होगा? तो बस सेम तरीके से बेस पे फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज पे दिया हुआ है।
मैं यही करूँगा फिर से, लेकिन इस बार क्या होगा, u इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा का कॉस क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ की फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन का कॉस, टैन का सेक, साइन का कोसेक, इनवर्स हो गया वो सब। और ये जो है साइन का कॉस, टैन का सेक, उसके बाद फिर जो कोसेक होता है उसका फिर कॉट, टैन का कॉट, कोसेक का सेक। तो वैसे करके ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले होते हैं। जहाँ भी को लगा हो ना, समझ लीजिए कि ये 90 माइनस थीटा की बात है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉस फाइंड कर रहे हैं, तो इसका अगर फुल नेम देखा जाए तो कोसाइन है, यानी कि साइन का को है, यानी कि साइन का वो कॉम्प्लीमेंट्री है। दो टाइप के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, राइट। अगर एंगल के मेजर की बात की जाए, ये 180 डिग्री का समिशन होता है, या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि समिशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका जो समिशन होता है वो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये कुछ 90 डिग्री होगा, उसमें से कुछ थीटा होगा, और हमें ये एंगल की बात करनी है। तो क्या ये थीटा का ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ? अगर मैं इसे अल्फा बोल दूं तो क्या अल्फा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा? सोच के बताओ, क्या अल्फा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा? क्यों? क्योंकि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो गए, यानी कि दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। यानी कि अगर मैं साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बोलूं, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ चीज साइन में है तो यहाँ पर वो चीज कोसाइन में होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो गया। और अगर यहाँ पर कोई चीज साइन में है तो यहाँ पर वो चीज कोसाइन में होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फंक्शंस होते हैं। तो अगर यहाँ पर बेस में कोसाइन में है और सेम अगर ये थीटा है उसका बेस पे कोसाइन है, तो इस अल्फा यानी कि उस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे क्या होगा, कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साइन। इसीलिए ही ये फॉर्मूला भी बना था, u इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर वैसे तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ भी है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 10th में देन वी विल डिस्कस इट। तो u cos 90 माइनस थीटा का बस अभी फॉर्मूला का नोट डाउन कर लीजिए, cos 90 माइनस थीटा का u साइन थीटा होता है बेसिकली। तो इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट जो हुआ वो हुआ u साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा। नाउ टेल मी अगेन, आई एम आस्किंग यू, फिर से मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, किस डायरेक्शन में g एक्ट करेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, यानी कि अगर ये, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और कुछ यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उस पे जी एक्ट करेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो स्पीड है वो क्या है, वो ऊपर की डायरेक्शन में, राइट, ऊपर की डायरेक्शन में वो। अब मैं लेट्स से जी को पॉजिटिव मानता हूं और मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, तो u नेगेटिव हो गया बिकॉज ये ऊपर जा रहा है, u साइन थीटा, या मैं u y एक्सिस भी कह सकता हूँ इसे, u इन y एक्सिस यानी u साइन थीटा। अब इस केस में जो मैक्स हाइट होगी और फिर इस केस में ये रेंज हुई ना, सेम जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था। तो हाइट इज व्हाट, हाइट जो मैक्स हाइट होगी, मतलब अगर बिकॉज ये इस डायरेक्शन की बात है, दोनों ही y एक्सिस की बात है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये है कुछ u साइन थीटा की स्पीड से कुछ जा रहा है, कुछ स्पीड ऊपर। अब ये अगर इस मैक्स हाइट तक पहुंच रहा है, मैक्स हाइट अगर h है, तो ये तो पूरा खेल एक ही वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल खेल है। तो इस केस में जो g भी एक्ट कर रहा है वो नीचे एक्ट कर रहा है, यानी कि ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। यानी कि हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन डाल सकते हैं,
एक और इम्पॉर्टेंट बात, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी डाला जाता है व्हेन इट इज अ प्ले ऑफ वन डायमेंशन एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर एक्सेलरेशन 2t+1 कहीं दे दिया तो t का वैल्यू अगर 1 डालें तो एक्सेलरेशन 3 आ जाएगा, t का वैल्यू अगर 2 डालें तो एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही अगर वन डायमेंशनल प्ले नहीं है, जैसे कि ये 2 डायमेंशन का है, u cos थीटा u sin थीटा दोनों ही डायमेंशन में ये जा रहा है, इसका लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, मतलब हाइट भी है रेंज भी है, तो इस केस में हम पहले इसे रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, देन वी डू व्हाटएवर प्रोसेस वी वांट टू डू ऑन ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, देन वी फाइंड व्हाटएवर इज द रिक्वायर्ड थिंग। क्यों? बिकॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें केवल और केवल तभी एप्लीकेबल बताए जाते हैं जब वो वन डायमेंशनल मोशन में होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एप्लीकेबल, यू कैन नॉट अप्लाई देम, और अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट ही गलत आएगा। ठीक है, तो अब G इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि H इज इक्वल्स टू, अब माइनस, ये ऊपर की तरफ माइनस है तो माइनस u sin थीटा। अब लेट्स से कि ये t टाइम में H अपना फाइंड आउट कर ले रहा है, t टाइम लग रहा है इसको, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको t टाइम लग रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ आने में भी t ही टाइम लगेगा। नोट, यहाँ से यहाँ जाने में उसको t टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में उसको t टाइम लग रहा है, यानी कि इस पॉइंट से मैक्स हाइट पॉइंट तक जाने में उसको t टाइम लग रहा है, तो यहाँ भी t लग गया, तो टोटल टाइम इज 2t। मैं अभी केवल बता रहा हूँ, मैं उस पर अभी नहीं प्ले कर रहा। अब माइनस ऊपर की तरफ है तो माइनस u sin थीटा t प्लस gt²/2, h इज इक्वल्स टू gt²/2 माइनस u sin थीटा। ये हो गया एक फॉर्मूला, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला है। नाउ रेंज, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसको रोक रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या g इधर की तरफ लग रहा है? नहीं लग रहा। कोई और एक्सप्रेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो अपना कॉमन चलता रहेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चल के रहा है यहाँ पे, तो बस u cos थीटा और u cos थीटा। अब क्योंकि यहाँ तक का टाइम है, अगर मैं बोलूँ कि t टाइम उसको लगता है h फाइंड करने में, h हाइट पे जाने में, और फिर t लगता है नीचे, यानी कि टोटल टाइम तो 2t है जिसने वो ट्रैवल किया, यानी कि टोटल रेंज जो है वो 2t होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा, अरे रेंज तो पूरा है ना, रेंज इतना दूर का थोड़ी फाइंड करना है, रेंज पूरे का, अगर इतना दूर का रेंज फाइंड करना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो u cos थीटा t हो जाता, बिकॉज t टाइम यहाँ तक पहुँचने में लगा उसको, तो फिर यहाँ तक अगर फाइंड करना है तो u cos थीटा इंटू ट्वाइस ऑफ t, डिस्टेंस निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू 2u cos थीटा t। अब ये हो गया। अब ठीक है, नाउ टेल मी, एक और कंडीशन ले लेता हूँ। बॉल को मैं ऊपर फेंका, अगर मैं इस डायरेक्शन में बॉल को फेंकता हूँ तो कुछ यहाँ से जाएगा और यहाँ आएगा, और अगर मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा कम स्पीड से बॉल फेंकता हूँ तो भी यहाँ आएगा। तो अगर मैं यहाँ से, मतलब ऊपर की तरफ जोर से फेंकूं तो भी वो यहाँ गिरेगा, या मैं धीरे से इधर की तरफ फेंकूं तो भी वो यहाँ गिरेगा। यानी कि एंगल दो भी हो सकते हैं, एक एंगल और दो एंगल, दोनों दो अलग अलग एंगल्स के केस में भी रेंज फाइंड हो सकता है, लेकिन वो एंगल्स हमेशा, ये एक फैक्ट है, वो एंगल्स जो हैं वो हमेशा 90 माइनस कुछ होंगे, 90 माइनस और 90 प्लस कुछ ऐसे ही होंगे। यानी कि the two angles at which same range is formed are 90 प्लस थीटा या 90 माइनस है, तो मैं इसे प्लस माइनस लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। 90 प्लस माइनस थीटा
दोनों ही बीटा के केस में अगर ये थीटा 90 प्लस बीटा है, सॉरी 45, यानी कि अगर ये 45 डिग्री है कुछ, अगर ये 45 डिग्री है तो ये बीटा अगर है तो सेम ये भी बीटा ही होगा। क्यों? बिकॉज ये दो केस में एक ऐसे फेंका जा रहा है और एक ऐसे फेंका जा रहा है। दोनों केस में अगर ये 45 है तो 45 प्लस बीटा हो जाएगा और ये 45 माइनस बीटा, दोनों ही केस में रेंज सेम आएगा। अब एक और फैक्ट, क्या 45 डिग्री के केस में रेंज मैक्स होता है। 45 डिग्री के केस में रेंज मैक्स होता है। क्यों मैक्स होता है? क्यों मैक्स होता है? क्योंकि cos 0 अगर मैं बात करूं, cos 0 1 होता है। अब cos 0 पे अगर मैं फेंकूं, यानी कि मैं थीटा तो 0 एंगल बना रहा हूं, यानी कि मैं तो वर्टिकल ऐसे इसी वन डायमेंशन में ही फेंक रहा हूं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब cos 30 की अगर मैं बात करूं तो √3/2 होता है। बट 30 डिग्री फिर भी 45 क्या हुआ? 45 ये हुआ कि ये ऐसे गया और फिर वो वहां जाके गिरेगा। 30 डिग्री मतलब कि बस ऐसे है, ये गया ये गिरा। 45 में मैक्सिमम रेंज होता है और फिर 45 से जहां बढ़ाएंगे तो फिर वो और पास गिरता जाएगा। सी ये कुछ केस होता है, अगर मैं यहाँ से ऐसे फेंकूं तो यहाँ गिरेगा, ऐसे फेंकूं और अगर मैं 45 पे फेंकूं तो मैक्स जाएगा। फिर मैं अगर ऊपर फेंकना शुरू कर दूं, यानी 45 से मैं एंगल बढ़ा लूं, तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा फिर से वो सेम रेंज पे आएगा। यानी कि अगर ये 45 है तो 45 से इतना कम है ये, तो ये 45 से उतना ज़्यादा, लेकिन दोनों ही केस में सेम रेंज आ रहा है, राइट? इसके केस में और इसके केस में। अब 45 से अगर ये इतना कम है, ये वाला जो ट्रेजेक्ट्री है, और अगर ये 45 से इतना ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही केस में 45 से अगर ये इतना ज़्यादा है और ये 45 से इतना, दोनों ही केस में सेम रेंज आ रहा है R1 R2। तो रेंजेस कैन बी सेम एट टू डिफरेंट एंगल्स, ये हमने आज सीख लिया। तो वी हैव डन कम्प्लीटली क्या हमें करना चाहिए। अब एक और बस छोटी सी बात, एंड देन आफ्टर दैट हमारा पूरा ये मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आप 11th की NCERT आप 11th सॉल्व कर सकते हो। नाउ अभी तो हमने टाइम को सी, currently we took time as half of as t and the other half as t. अब एग्जाम्स में तो हमें टोटल टाइम दिया रहेगा। एग्जाम्स हमें ये कोई नहीं बताता कि हाफ जब हाइट जब अटेन हो रहा है तब तक में टाइम टी हो रहा है, उसके बाद का टाइम टी हो रहा है, ऐसा एग्जाम में नहीं दिया रहता। तो हमें एग्जाम में केवल टोटल टाइम दिया रहेगा। टाइम टोटल का टाइम टी है। नाउ रुक जाओ, शांति शांति शांति, टाइम टी है। अब ये एंगल है थीटा। नाउ अगर ये टी है तो क्या ये t/2 हुआ? पहली बात तो अब ये t/2 हो गया, यानी कि अब ये जो है ये t/2 हो गया। पहली बात, ये भी पार्ट अब t/2 का होल स्क्वायर हो गया, राइट? नाउ ये भी अब हो गया t/2, तो ये तो कट गया। यानी कि इससे क्या मैं कह सकता हूँ r = u cos थीटा t, तो क्या मैं इसे t = r/u cos थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, सिंपल डेरिवेशन है, ये याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला एक। अब ये भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़े से अपने फॉर्मूले में थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ लाता हूँ। अभी तक तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पे खेला, अब चलिए थर्ड इक्वेशन पे भी थोड़ा सा देखते हैं। क्या देखते हैं?
फाइनल वेलोसिटी एच मैक्स पे भी ऑलवेज नो कि हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है. वेरी गुड. इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u sin थीटा. वेरी गुड. नाउ h हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड. वेरी गुड. क्या हम h निकाल सकते हैं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि 2g. अब ये फाइनल तो जीरो है ये, और ये माइनस का क्या, ये खुद ही माइनस u sin थीटा है, लेकिन उसका स्क्वायर है, यानी कि माइनस साइन तो हट जाएगा स्क्वायर के टूटने के बाद, तो ये स्क्वायर आ जाएगा दोनों ही साइड्स में ओवर 2g. तो जीरो माइनस मतलब अगर वेक्टरली देखा जाए तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, लेकिन अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ठीक है, माइनस हटा दो. केवल मैग्नीट्यूड तो माइनस में नहीं ना, हाइट चला जाएगा, हाइट पॉजिटिव ही रहेगा ना. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ये एक फॉर्मूला है नोट करने के लिए, बहुत काम का फॉर्मूला है. h का ये है. नाउ टेल मी, अगर मैं इस पाथ की बात करूं, केवल ये वाले पाथ की, राइट. अगर मैं केवल इस पाथ की बात करूं तो v इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू u sin थीटा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, फाइनल इज 0. एक्सेलरेशन हमें पता है कि g है, ये माइनस है. क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकाल सकता हूँ? क्या होता है? v इज इक्वल्स टू u माइनस 80, आखिर u प्लस 80 होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. और इस केस में ये माइनस चला गया और ये g हो गया, राइट. किसी एक को माइनस, अभी हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया था, हमने ऊपर माइनस है नीचे पॉजिटिव है, तो यानी कि g पॉजिटिव है. तो ये हमारा साइन कन्वेंशन. अब v हमारा हमें पता है कि ये 0 हो गया, तो माइनस u का अगर उधर भेजा तो u इज इक्वल टू gt. अब ये क्या है, ये u जो है ये हमने फॉर्मूला लिखा है, हमने इसमें वैल्यूज नहीं पुट किया अभी तक. तो ये है इनिशियल वेलोसिटी. अब इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, बिकॉज अभी हम इस पार्ट पे खेल रहे हैं, हम इस एक्सिस पे नहीं देख रहे हैं. अगर इस पार्ट पे देखा जाए तो ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया गया गया. अब हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही ऊपर की तरफ गया, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो अब ये g डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, यानी कि केवल इस पार्ट के लिए टाइम कितना हुआ, तो टाइम फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80 होता है इक्वेशन के हिसाब से. अब इनिशियल वेलोसिटी का हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या होगा इसका, u sin थीटा होगा इज इक्वल्स टू g t, यानी कि t क्या आया हमारे पास, u sin थीटा बाई g आया ना t. अब नाउ टेल मी t जो है वो तो केवल हमने यहां तक का फाइंड किया, यहां का तो t भी है, यानी कि द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट. यानी कि जब टोटल टाइम की बात की जाएगी, टोटल टाइम इज ट्वाइस ऑफ u sin थीटा बाई g. ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आप नोट कर लीजिए. अब एक और, रेंज क्या होता है? रेंज होता है हमारा u cos थीटा t, बिकॉज इसमें तो कोई रुकावट नहीं है, तो ये कॉमन वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया हमारे पास. सॉरी, ये टोटल टाइम, क्योंकि रेंज तो आखिर पूरे का रेंज है. अब टाइम का क्या मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं. आखिर टोटल टाइम पे तो हम बस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं. तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा
बाई जी, राइट। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा का जो 2 sin थीटा cos थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, वो होता है sin स्क्वायर थीटा। मतलब 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी। ये आया हमारा रेंज। गुड गुड। ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला जैसे कि आप याद करिए। मैंने अभी जस्ट 3 फॉर्मूले बता दिए याद करने वाले। T इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, H इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, R इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g। sin स्क्वायर थीटा नहीं, sin 2 थीटा होता है फॉर्मूला में, u स्क्वायर sin 2 थीटा। यानी कि अगर थीटा 15 डिग्री दे दिया तो क्या आप sin 15 निकालने जाओगे, cos 15 निकालने जाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। यानी कि अगर 15 दिया तो उसका आप ट्वाइस करके 30 निकाल लोगे, और फिर 30 में आपको वैल्यूज पता है तो आप वो डाल दोगे। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता रहेगी तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करते हैं कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आप ये याद करना चाहो तो ये याद कर लो, अगर आप ये वाली याद करना चाहो तो ये वाली भी याद कर लो, लेकिन आई वुड रिकमेंड आप नीचे वाली याद करो, नीचे वाली, ये इस पार्ट, इसको याद कर लो, बहुत कम आएगी। रेंज का 2 फॉर्मूला। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहाँ से स्टार्ट किया जाए? h से, टाइम से, r से। चलो एक सेकंड, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके नोट डाउन कर लीजिएगा, पीछे करके रिवाइंड। अब आता है मेन पार्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमें पता है s इज इक्वल्स टू u साइन थीटा t बाई 2 माइनस g t बाई 2 स्क्वायर इंटू 4। ये मैंने क्या लिखा? हमें पढ़ा था अभी h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t तो केवल इस पार्ट का है, h तो आखिर यहीं तक आ रहा है ना, तो t का ये हाफ है, ये t, यानी कि t का मैंने हाफ डाल दिया यहाँ पर, t का हाफ कर दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, यानी कि t बाई 2 का स्क्वायर, तो t स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब मैं h को यहाँ पर y भी लिख सकता हूँ, h को यहाँ पर x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन द y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन द x एक्सिस। तो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, ओके, t बाई 2 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 8। अब हमें पता है r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। अब क्या करना है हमें ये करना है, हमें ये भी पता है कि t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, राइट, बिल्कुल पता है हमें। अब बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है?
जैसे अगर मैं बोलूँ आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करो क्या रेंज है, या अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और इनिशियल वेलोसिटी कुछ था u, एंगल ऑफ ट्रैजेक्टरी था थीटा, फाइंड करो कि यहाँ का हाइट क्या है, किस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइप के केसेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब हमें ये भी पता है कि ये जो बेस लाइन है ना, ये x यहाँ पे पूरा x है, ये हाइट y है, यानी कि x/2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ आ जाएगा, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x = u² sin 2θ/g, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं u की वैल्यू यहाँ से फाइंड उठाता हूँ, मैं अभी यहाँ पे 2u sin θ पुट अगर करूँ तो ये हो जाएगा 4u² sin² θ/2g, g से g कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो sin² θ में चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेट्स डू इट विद दिस वन, x = u² sin 2θ/g। यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू फाइंड करूँ तो gx by sin 2θ रूट, राइट, sin 2θ का रूट, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसे ऐसे लिख भी सकता हूँ, या मैं x को u² 2u² sin θ, टाइम का ये फॉर्मूला बेसिकली था क्या, रेंज क्या है, रेंज इज u cos θ into t, राइट, दिस इज द रेंज। अब मैं यहां से भी u निकाल सकता हूं, कैसे मैं u निकालूंगा, तो u = x/cos θ लिख सकता हूं, x/cos θ t लिख सकता हूं क्या, cos θ t को नीचे बुला दिया तो x/cos θ t। नाउ मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस u की जगह पे ये पार्ट पुट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं बस u की जगह वो पार्ट पुट कर दे रहा हूँ। तो y = x cos θ sin θ x/cos θ t, t इज द टोटल टाइम, तो यहाँ पे मैंने टोटल टाइम कैपिटल T से डिनोट किया है, मैं यहाँ भी टोटल टाइम कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूँ, x/cos θ t/2 था ये, इंटू ये t था तो t से t कट गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर g/2 इंटू t²/4 है फिलहाल। अब यहाँ भी मैं t का फॉर्मूला पुट कर दूं, क्या पुट करेंगे हम t का फॉर्मूला, यहाँ से मैं t को x/u cos θ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हमने इस फॉर्मूला का यूज किया, पहले बार हमने u को फाइंड किया विद रेस्पेक्ट टू x एंड t, अब की बार हम t को फाइंड कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू u n, यहाँ पे t = x/u cos θ हो गया। अब मैं यहाँ पर जो बचे कुछ इक्वेशन है उसमें मैं t का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, g/8 t का स्क्वायर है x² u² cos² θ,
अब टेल मी इट इज राइट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो ओवर हियर आई कैन राइट इट एज sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या बेसिकली देखो, अगर मैं इस पूरे फिगर की बात करूं तो यहां से यहां जाने के पूरे फिगर में अगर t सेकेंड्स लगे तो उस t सेकेंड्स में मैक्स हाइट जो थी हमारी, मैक्स हाइट जो उस t सेकेंड्स में थी वो तो हमने ऐसे निकाली, लेकिन अब फिर आखिर में t सेकेंड्स में मैक्स हाइट हमें फाइंड करनी है, बिकॉज हम ओवरऑल फिगर की बात कर रहे हैं। तो मैं इसे t/2 लेने के बावजूद, मतलब इसे मैं t/2 न लेकर के मैं इसे केवल t लेता हूँ, बिकॉज सी इस पूरे टाइम इंटरवल में ये मैक्स हाइट इवॉल्व हो रहा है, इस इंटरवल में भी ये मैक्स हाइट है, इस इंटरवल में भी ये मैक्स हाइट है, लेकिन बिकॉज हम पूरे को कैपिटल यानी टोटल टाइम में देख रहे हैं तो हम इसे भी टोटल टाइम में देख लेते हैं, तो हमें आसानी होगी बाकी काम करने में। तो मैं इसे t/2 न लेके मैं इसे t ही लेता हूँ, फिर सेम हाइट है राइट, यानी कि t/2 की वजह अब ये हो जाएगा t²/2, बिकॉज ये 4 हट जाएगा और ये भी t/2 रह जाएगा राइट। नाउ दिस इज देयर। अब x tan थीटा y is equals to x tan थीटा माइनस gx² ओवर u² cos² थीटा t। समझ में आया? अब ये t कहाँ से आ गया? t कहाँ से आ गया? ओह सॉरी, ये t तो फॉर्मूला का है, वही तो मैं सोच रहा हूँ t कहाँ से आ गया। t इज इक्वल्स टू दिस राइट। तो अब ये हमारे पास बचा, अब इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है ये? अगर किसी भी पर्टिकुलर x वैल्यू पे अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, थीटा पता हो और रेंज पता हो, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट निकाल सकते हैं। बस यही है। इसमें से हमें बस सेकंड इक्वेशन यूज किया हमने और t की वैल्यू अबैंडन कर दी, u की वैल्यू रिप्लेस मार दी विद रिस्पेक्ट टू रेंज और हमें मिल गया आंसर। बस कितना आसान तो था। अब मैं इतना खेल लिया, थोड़ा सा आगे आपको और ले चलता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बताता हूँ, अभी बता दूँ। क्या मैं इसे x tan थीटा माइनस x² ओवर u² cos² थीटा बाई g लिख सकता हूँ? मतलब फिर ये g डिनोमिनेटर में तभी ऊपर जाएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं x tan थीटा मैं x बाहर करके माइनस x बाई u² cos² थीटा, ओके, मैं अगर लेट्स से मैं अगर यहाँ से x tan थीटा बाहर निकाल रहा हूँ राइट, तो क्या बचेगा? 1 माइनस x, अभी एक x निकला है। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। अब हमारे पास खुद अभी फिलहाल डिनोमिनेटर में cos² थीटा है। अब हमें इसको डिवाइड करना है sin थीटा और cos थीटा से। sin थीटा बाई cos थीटा, तो एक cos थीटा तो कट गया, यानी कि ये हो गया 1 ओवर sin थीटा और cos थीटा राइट बाई जी, और ये u² फिलहाल है ही हमारे पास। अब अगर मैं बोलूं आपको कि ये u² sin² थीटा बाई 2g, यानी ये हुआ क्या? ये आखिर देखिए, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है,
हम यहाँ भूल गए इसे क्यों, या फिर फॉर्मूला का तो पार्ट है, हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, तो अब ये हुआ हमारा कंप्लीट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। नाउ यहाँ पे अब बिकॉज ये 2 आ जाएगा नीचे, तो अब ये आ जाएगा 2 यहाँ पर। अब क्या ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी को मैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख सकता हूँ? क्या ये रेंज का फॉर्मूला आ गया? यानी कि क्या मैं x tan थीटा बाहर लेने के बाद x बाई आर लिख सकता हूँ? ये भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का डेरिवेशन है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे बहुत केसेस में काम करता है, और इसी के साथ हमने पूरा का पूरा मोशन रिलेटेड टू 1 डायमेंशंस खत्म कर लिया, 2 डायमेंशंस खत्म कर लिया। 3D मोशन में फिर वेक्टर्स आ जाएगा, इसलिए अभी हम वो नहीं करने वाले हैं, बिकॉज 3D मोशन में फिर वेक्टर्स में फिर हमें एक एक के स्पीड, वेक्टर्स बहुत फास्ट चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी हम 11th में करेंगे, बिकॉज फिर वो ऐसा हो जाता है, ये 3 एक्सिस अगर हैं x y और z, तो फिर अगर पॉइंट यहाँ है और वो यहाँ जा रहा है, तो फिर यहाँ पे थीटा क्या होगा, फिर इस केस में क्या होगा, थीटा या अल्फा। फिर ये वर्टिकल से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, सो उस केस में हाइट कितनी है इसकी h, उस ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है x के इस पॉइंट से। तो बेसिकली वेक्टर्स के उस फॉर्म में बहुत कुछ आ जाएगा, दैट इज वाई अभी हम नहीं करने वाले, वो 11th का पार्ट है। Then we're not going to do that. Let me give you a question. What is my question? My question will be, question क्या है मैं बताता हूँ। Find find the range at which this position can take place. Right? इसमें हमें रेंज फाइंड करना है, मतलब वेलोसिटी। अब देखो, अब इसमें क्या हो सकता है कि ये या तो यहाँ से जाएगा, नहीं तो इसका ये मिड पॉइंट होगा, नहीं तो ये ऊपर से आ रहा होगा, तब ऐसे होगा, तो कुछ भी केस हो सकता है, इसलिए हम टाइम अज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज वाई हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव किया, बिकॉज ऐसे केसेस में मैं इसीलिए प्रैक्टिकल्स आपको एग्जांपल ज़्यादा देता हूँ, बिकॉज ऐसे केसेस में हम ये अज्यूम ही नहीं कर सकते कि आखिर ये मिड पॉइंट से पहले, मिड पॉइंट के बाद है, ऊपर जाकर नीचे आ रहा है या डायरेक्ट ऊपर जाता जा रहा है तभी वो पोजीशन आ गया। तो दैट इज वाई वी कैन नॉट अज्यूम द टाइम और द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव किया। अब सेम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस, और कोई काम नहीं करना। y is equals to come on, tell me the equation of trajectory now. अब एक और बात बताओ, पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के पहले यहाँ पे हमें फाइंड करनी है r। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे फाइंड करनी है y, तो क्या y डायरेक्टली 5 बोल सकते थे? बिल्कुल बोल सकते थे। तो y डायरेक्टली अगर 5 होता तो उस केस में तो भी ठीक है, आप बोल सकते थे। अगर u बोला जाता है, कोई बोलता है कि u फाइंड करो, तो फिर वो भी आप फाइंड करके बता दो। तो बेसिकली आपको डायग्राम में समझना है कि क्या x है, क्या y है, क्या t है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पुट करके मैं कह सकता हूँ कि ये x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वैल्यूज पुट करते जाओ। 5 इज इक्वल्स टू r tan 30 का वैल्यू 1/√3 माइनस 10 इंटू जी का वैल्यू 10 मान लिया हमने, r का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ 400 यानी कि u का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इसका स्क्वायर बोल रहे हैं, यानी कि 3/4 करने बोल रहे हैं। 3 इंटू 4 कर देते हैं,
क्या निकला हमारे पास निकला 5 इज इक्वल टू r/√3 माइनस, या मैं इसे ऐसे न लेके मैं इसे 45 ले लेता हूँ लेट से, बिकॉज फिर ये आपको दिक्कत आएगी समझने में कि रूट का मैं क्या करने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं इसे लेट से 45 लेता हूँ, तो tan थीटा 1 हो जाएगा और फिर cos स्क्वायर थीटा 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा 1/2। 2 से अगर ये कटा है तो ये 2 बचेगा। बिकॉज मैंने इसलिए कर दिया चेंज क्वेश्चन को, बिकॉज देन अभी आप फिलहाल समझो चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर, देन तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके बना लोगे। दैट इज वाई मैंने अभी फिलहाल वैल्यू चेंज कर दी। r² ओवर यहाँ पे 2 × 2 40 और इंटू 10 ये 40 हो गया। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं r² को मैं पहले डिनोमिनेटर को पूरा 40 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, डिनोमिनेटर पूरा 40 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया 200। अब r² को उधर बुला लिया, r² माइनस 40r प्लस 200 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली तो नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके मैं बोल सकता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी को पता है? अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं दिया हो ax² माइनस bx प्लस c या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a होती है वैल्यू। ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है। तो बस अभी हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि इसका माइनस कर डालो यानी कि 40 पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस 4 इंटू r का 1 है यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे 200 है, यानी कि 1600 माइनस 800 बोल रहा है, और फिर ये बोल रहा है कि 2 × 1 बिकॉज r का 1 है यहाँ पर, 2 × 1 है यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में। 1600 माइनस 800 ओवर 2, क्या मैं इसे 800 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 बाहर कर लूँ और नहीं 20 बाहर कर लेता हूँ, प्लस माइनस 20√2 हो सकता है क्या, ओवर 2, तो 2 से मैं इसे ऐसे काट दूँ, विच इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 10√2। अब इस केस में 20 प्लस 10√2 भी हो सकता है, 20 माइनस 10√2 भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज रेंज तब भी नेगेटिव नहीं आएगा। 10 × √2 हो गया, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो 14.14 हो गया। अब अगर 20 माइनस 14.14 करेंगे तो भी आ जाएगा हमारा कुछ 6.86 अराउंड, तो उस केस 5.86 अराउंड, तो उस केस में भी हमारा रेंज नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि ये कैसा कंडीशन है, ये ऐसा कंडीशन है कि अगर कोई बॉल जा रहा है, मैं सेम हाइट यहाँ पे y बना रहा हूँ, ये कैसा कंडीशन है, ऐसा कंडीशन है कि ये यहाँ से गया और यहाँ से आया, मतलब कि इस पॉइंट पे भी ये टच कर रहा है, इस पॉइंट पे भी ये टच कर रहा है, और यहाँ का जो रेंज है वो 20 माइनस 10√2 है, और यहाँ का जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक का वो 20 प्लस 10√2 है। इस केस पे भी टच कर रहा है, इस केस पे भी टच कर रहा है, भले दोनों ही केस में y इज इक्वल टू 5 हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप समझ जाओ कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का यूज कैसे होता है। वैसे तो हम 30 डिग्री में भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन फिर वो रूट अंडर रूट अगर आ जाता तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती समझने में कि ये रूट अंडर रूट कैसे सॉल्व होगा। अभी तो हमने रूट से बाहर निकल के सॉल्व कर लिया, लेकिन अंडर√3 का फिर अंडर रूट करना आसान काम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे NSE/JS में। एक एग्जांपल मिल गया होगा आपको कि क्वेश्चंस आसान तो नहीं ही होते हैं, लेकिन हार्ड भी नहीं होते हैं। NSE/JS के क्वेश्चंस आसान भी नहीं होते हैं, हार्ड भी नहीं होते हैं।
तो हमने आज ये सीखा. So basically today we covered a lot much of class 9th NSCJS INJSO level. हमने क्या क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से क्वेश्चंस देखे. सेकंड, डिस्टेंस एवरेज, टाइम एवरेज का फॉर्मूला देखा इन केसेस ऑफ 2 स्पीड्स एंड 3 स्पीड्स एज वेल. हमने projectile motion when projected horizontally from a top of a building वो देखा. उस केस में क्या होता है when a ball is projected from the ground and it's projected up and then at what condition it will be what, वो देखा हमने. then we saw the equation of trajectory जिससे कि हमने questions भी solve किए. so basically in the next lecture we will do the uniform circular motion and then questions related to the all of the topics. आज मैंने इसलिए क्वेश्चंस उतने नहीं कराए बिकॉज अभी और भी टॉपिक्स पढ़ने बाकी थे. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो मेन पार्ट बाकी ही था. दैट इज़ वाई आई टोल्ड कि ठीक है अगले लेक्चर में करेंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑल द केसेस रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेकेंड, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस दैट हैपन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज बहुत केस के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि बॉल यहाँ से प्रोजेक्टेड है या बॉल को मैं घुमा रहा हूँ तो क्या मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे कि यहाँ पहुँचे बस, क्या मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे कि 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल, क्या मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे कि 1/3/4 ट्रैवल करे, क्या मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे कि वो एक सर्कल राउंड कंप्लीट करके 1.5. तो वैसे करके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और वो सारे के सारे 11th-12th के लेवल के हैं. तो वो हम नहीं करने वाले. हम जो बेसिक्स हैं सर्कुलर मोशन के, जितना टॉपिक्स पूछा जाता है NSCJS में उतना विल डू इट. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटिंग UCM, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय टिल देन एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द video. Take a minute's time, like, share, and subscribe the video as well. It gives me much motivation to keep uploading the other videos. Okay, so thank you and bye bye.